Is the screen visible? Yes, sir. Yes. So we will repeat up whatever we done in the last lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को डिस्कस किया था कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्हाट एवर वी हैव डन। हमने देखा कि कोई भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है लाइक ax इज इक्वल टू b वेयर b इज नॉन जीरो, तो हमने बात किया था कि ये जो सिस्टम है या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा कि अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी के इक्वल आ जाता है। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? इट मींस दैट व्हेन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए is not equal to be the rank of the augmented matrix A is to B. अगर ये rank equal नहीं आता है, in that case it is inconsistent. Inconsistent means in that case we do not found any solution. There is no solution. And in case of consistent, we can found a solution, and we can already discussed up again. There are two parts. In that case, we have a solution is either unique or infinite. So solution is a unique when the rank of the matrix A is equal to B, the number of unknowns or the variables, है ना? And in this case, infinite when the rank of the matrix A is less than the number of unknowns, है ना? So that we have already discussed. So similarly, in the same pattern, we can be describe this thing over the case of a homogeneous system. अगर हमारे पास homogeneous system है, तो homogeneous के system के अंदर भी वो हम ऐसे ही describe कर सकते हैं. So in that case, let's see out. अगर मेरे पास homogeneous system है, homogeneous system है, homogeneous system means in that case the value of b is 0. तो means हमारे पास system कुछ ऐसा है, ax is equal to b 0. अब इस सिस्टम के अंदर इफ कैन टॉक अबाउट, तो सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो बस डिस्कशन है कि यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा। अकॉर्डिंगली यूनिक कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा, हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक के केस में अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है is equal to be n, so this is the consistent always, you can be remembered, it is always consistent. So unique means we get a trivial solution whenever the x is 0, y is 0 and z is 0. Otherwise we can always have a chances will be there infinite many solution when the rank of the matrix A is less than the number of unknowns or variables. Okay, so this is the case that we have to be discussed in the today's lecture, how we can solve a given system of linear equations. Okay, so now based upon this system I can talk about a numerical problem. The question is this one, and this question remains same throughout the system of equations. Test the consistency of the given system using row reduced echelon form, and if consistent find all the solutions. तो अगर वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, in that case you have to be find the solution. Say that we have a system of equations are there given to you. So say that we are considering a system of equations
say that we have to solve 2x1 minus 3x2 plus x3 is equal to be minus 2, and second equation is x1 minus x2 plus 2x3 is equal to be 3, and third one is 2x1 plus x2 minus 3x3 is equal to be minus 2. So to proceed with the solution, first of all we have to be right in the form of ax is equal to be b. We can write up in terms of this one. So we have the matrix A is 2 minus 3 1 1 minus 1 2, then 2 1 minus 3, and here we have a x1 x2 x3, and the corresponding elements of the B are, we have here is the 2 3 and minus 2. So after this, because we have to be use up a row reduced echelon form to get a solution of this system of equation, so we have to be right in the form of a augmented matrix. तो हम इसे अब augmented matrix की form में rewrite कर देते हैं. So write in terms of a augmented matrix A is to B. It's minus 2. Beta, please. Okay, minus 2. Yes, sorry, minus 2. Okay, sorry. So we have the minus 2, 3, and minus 2 out there. So first of all, we have to be right in the terms of augmented matrix. So augmented matrix ये बन जाएगी. Basically, augmented matrix just help us to be simplify the result. Otherwise, इसी form को भी आगे बढ़ा सकते हैं. But anyhow, with the dotted line, I can represent the elements of P. We have a 1, minus 1, 2. Here we have a 3, and then we have 2, 1, minus 3, and minus 2. Acha, okay. Now, to apply the row reduced echelon form, okay, we have to be check up the consistency. हमने अब apply करनी है row reduced echelon form on this augmented matrix to check the consistency. So now, apply row reduced echelon form on this augmented matrix to check consistency. अब वो consistency check होगी using a rank procedure जो हमने अभी ऊपर डिस्कशन की है. अच्छा, अगर मैं रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बना रहा हूं तो इसका मतलब है सबसे पहले जो मेरा पाइवट एलिमेंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, मुझे वो चेकआउट करना है. वो क्या बनाना है? अब ये नॉन जीरो है, पर पहले सबसे पहले मुझे इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है. या तो मुझे 1 बनाना है, या देखो अगर मैं 1 बनाता हूँ 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरा थोड़े नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में टर्म्स आ जाएंगी, है ना. तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं रो 2 को रो 1 से रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि रो 2 में ऑलरेडी 1 है. ठीक है, अदरवाइज आप 2 से डिवाइड भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. व्हाई यू हैव अ कैलकुलेटर विद यू, यू कैन आल्सो रिप्लेस अप, अदरवाइज रिप्लेस द रो. तो मैं कैलकुलेटर ना यूज करना चाहूँ तो मैं आई कैन यूज अप, मैं रो ऑपरेशंस लगा लेता हूँ यहाँ. ठीक है, आई जस्ट रिप्लेस द रोज. अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 minus 1 2, and here I have a 3, then 2 minus 3 1 minus 2 2 1 minus 3 and minus 2. अब मेरे पास पहला लीडिंग एलिमेंट जो है ये वाला वो यूनिटी बन गया. अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है? Now I have to be make in that particular column and I have to be make other elements to be 0. इसका मतलब मुझे ये जो दो एलिमेंट्स नीचे वाले हैं इसके, इनको रिड्यूस करना है 0 पे, है ना, यूजिंग अप द डेफिनेशन ऑफ अ रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म. तो अब मैं इन दो एलिमेंट्स को यूजिंग अप रो ऑपरेशंस आई कैन ट्राई टू बी मेक अप 0. ठीक है, तो ऑपरेशंस लगाते हैं. तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R2 में काम करते हैं, R2 minus 2 times R1, और R3 में R3 minus 2 times
R1. So I will just apply up these two operations now. तो क्या आ जाएगा ये 1 minus 1 2 and here I have 3 and here I have a 0 and 0 corresponding. तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 and +2 -1 and here we have -3 and here we have -8, here 3 -7 and -8. Is it clear? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट रो चेकआउट करनी है. ये काम कंप्लीट करने के बाद पहले रो का पहले कॉलम का काम कंप्लीट हो गया ना. अब नेक्स्ट रो चेक कीजिए और नेक्स्ट रो के अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखिए. क्या है नॉन जीरो एलिमेंट? यस, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज दिस वन. यही है, बट ये -1 है, यूनिटी नहीं है. तो यूनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए. तो वी कैन मल्टीप्लाई द R2 विद द -1 in the next process. तो क्या आ जाएगा 1 -1 2 here we have a 3 0 1 3 8 0 3 -7 -8. अब ये एलिमेंट जो है वो 1 तो बन गया, यूनिटी बन गया. अब यूजिंग अप यूनिटी क्या करना है? we have to be make the above element to be 0 and below element to be 0 using up some row operations. तो क्या करेंगे? R1 में R1 plus R2 कर लेते हैं और R3 में R3 minus 3 times R2 कर लेते हैं, है ना? We can apply up this operation now. तो क्या आ जाएगा नया मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 0. Here we have a 1 3. यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 plus 2 5 and 8 plus 3 11 and here we have a 0 and we have here is -16 and -32. अब इस एलिमेंट के थ्रू भी काम कंप्लीट हो गया रो रिड्यूस ऑपरेशन वाला. अब उसके आगे we have to be go with the next रो एंड उस रो के अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट चेक करेंगे. अब पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा प्लीज. सर हमें तो सर रैंक ही निकालना है ना. निकालना है मतलब रैंक ही निकालना है बेसिकली. हाँ, सिर्फ. हाँ जी हाँ तो जी. सर वो तो यहाँ से निकल ही गया सीधा सीधा कि दो रोज का तो हो गया और तीसरी ऑटोमेटिकली दिख ही रहेगी. रैंक निकल गया, ठीक है, पर उसने क्वेश्चन में क्या कहा था? यूजिंग रो रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म. अच्छा, मतलब सर बनानी पड़ेगी कंपल्सरी पड़ेगी. आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं. अगर उसने ना बोला होता ना रो रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म तो आपकी ये रिड्यूस हो चुकी है, तो यहाँ से आंसर निकल सकता है. रैंक पता चलेगा यहाँ से. हाँ ठीक है. तो अब क्या करेंगे? इन दैट केस वी हैव टू बी R3 को डिवाइड करवा लेंगे -16 के साथ. ठीक है. तो वी गेट हियर इज द 1 0 5. देखिए अगर रो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म ना दिया होता तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे, यहाँ पे आंसर निकल सकता था रैंक वाला प्रोसीजर के साथ. अदरवाइज उसने बोल रखा है रो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म को रिड्यूस कीजिए, तो इन दैट केस यू हैव टू बी रिड्यूस इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द रो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म. ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ डेफिनेशन इज बीइंग सैटिस्फाइड. तो यहाँ पे ये हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है फॉर्म हो. अब आगे अब आपके पास देखिए जब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा ना तब आप कह सकते हैं कि वहां पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है. बट जब सॉल्यूशन निकालना है तो इन दैट केस यू हैव टू बी मेक इन द फॉर्म. तो इन दैट केस हियर से दैट अब यूजिंग अप अ यूनिटी एलिमेंट यू हैव टू बी मेक दीस टू एलिमेंट्स टू बी 0. तो क्या करेंगे? R1 में R1 minus 5 times R3 और R2 में R2 minus 3 times the R3. ठीक है. So we get here is a 1 0 0 and over the P element we have a 1, then we have a 0 1 0 and here we have a 2 0 0 and 1, here we have a 2. ठीक है. अब फाइनली अब आपके पास ये जो है रो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म है. सो दिस इज अ रो रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म
of augmented matrix A is to B. ठीक है, अब अगर मैं इसमें इस पूरी मैट्रिक्स का अगर रैंक देखूं, इस कंप्लीट मैट्रिक्स का, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज A is to B ना, तो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? 3 है ना। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is to B कितना है? 3. तो नाउ इफ आई गो विद द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A, अगर मैं मैट्रिक्स A चेक आउट करूं तो मैट्रिक्स A का मतलब है जो हमने ये वाली मैट्रिक्स लिखी है, दिस इज द मैट्रिक्स A, ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, दिस इज द मैट्रिक्स A, ठीक है। एंड दिस ओवर हियर दिस इज अवर मैट्रिक्स B, ये हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स B आई है। तो इफ यू गो विद दैट, हियर वी हैव अ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A, कितना है? Again 3. Now if you see out, the rank of the matrix A is equal to be the rank of the augmented matrix. Rank of the matrix A is equal to be the rank of the augmented matrix, which is equal to be 3. तो इसका मतलब हो गया, तो so system is consistent. अब system consistent है तो you have to find a solution, ठीक है। So solution जो होगा अब आपने निकालेंगे। तो अब आप चेक करते हैं, अगर हम चेक करें तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बी रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये इक्वल है। इट इज आल्सो इक्वल टू बी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे इक्वेशन में कितने थे? 3 थे। सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो यूनिक कैसे होगा? अगेन वी कैन राइट टू बी जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म की थी आफ्टर अप्लाइंग अप ऑल द रो ऑपरेशंस, है ना, अब उसे वापस लिखते हैं हम। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर ली थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A is to B आ गई थी हमारे पास, है ना। तो उसको हमने लिखा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड हियर द एलिमेंट्स आर 1 2 and 2। इसका मतलब है इसे वापस हम रीराइट करते हैं AX इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स क्या हो गई? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into the x1 x2 x3 is equal to be 1 2 and 2, यही आया। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो इट implies that x1 is equal to be 1, x2 is equal to be 2 and x3 is equal to be 2. So we get a unique solution. We get the answer. Clear? So this is the way that you can be find a solution using the RREF. ठीक है, अगर RREF के बारे में नहीं बोला जाता तो आप कंसिस्टेंसी यहाँ से भी चीजें चेक कर सकते थे, जो हमने अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फॉर्म बन गई थी, तो इसी प्रोसेस से आपका आंसर जो है x1 x2 x3 का निकल सकता था। बट हियर वी हैव कन्वर्टेड इनटू द RREF फॉर्म and then we are finding up a solution. Okay, so say that we have a next question is there on the same pattern. The question here is solve again. Question remains same. Test the consistency using up a RREF and get the answer if it is consistent. Okay, तो क्वेश्चन वही है। तो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं, like say that 1 -4 7 3 8 -2 7 -8 26 and the required vectors are x1 x2 and x3 which is equal to be say 8 6 and 3। अब ये सिस्टम को सॉल्व करना हमने, तो ये ऑलरेडी ax is equal to be b की फॉर्म में दिया ही हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए वी कैन राइट अप इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। So we can write up in the A is to B which is equal to be 1 -4
7, and the corresponding elements of B are 8, 6, and 3. Here we have a 3, 8, -2, 7, -8, and 26. Now what to do? तो अब हमारे पास पहली रो का जो पहला ही एलिमेंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो पाइवट एलिमेंट है, वो ऑलरेडी यूनिटी है ना? इट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू अस एज बीइंग यूनिटी. So using up a help of this element, we have to be reduce these two elements to be 0. So we will apply the operations. So हम करते हैं R2 में R2 minus 3 times R1 और R3 में R3 minus 7 times R1. ठीक है? Apply the operations and get the answer. Here we have 1 minus 4, 7, here 8. So we get here is 0, here we get the 0, and then we have here is the 20, here we have a minus 23, here we have 6 and minus 24, minus 18, okay, and here we have again minus 8 and 7, 28, 28, so we get again 20, and here minus 23, and here minus 53. ठीक है यालिम? ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर काम करना है, और नेक्स्ट रो के अंदर जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है. ठीक है. अब देखिए, अब थोड़ा सा ना इसमें हम प्रोसीजर कर लेते हैं. अगर आप देखें R2 और R3 के ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है हमारे पास सेम आ रहे हैं. 20 आ रहा है और minus 23 आ रहा है यहाँ पे. अगर आप इसे देखें तो वी हैव हियर इज द 20 and here is a minus 23, here is 20 and here is minus 23. तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी सीधा ही R2 में R3 में R3 minus R2 कर लेता हूँ. ठीक है, ताकि ये जो है, अदरवाइज क्या करूंगा, मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा and some fractions terms are being included. तो मैं पहला काम R3 में R3 minus R2 कर लेता हूँ. So I have 1 minus 4 7 and here I have 8 0 20 minus 23 and here I have a minus 18 and here I have a 0 0 and 0 and here in this part we have minus 53 and plus 18, we get minus 35. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? Because the system is inconsistent here. कैसे inconsistent है? अब देखिए, आपके पास ये जो पूरी मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितना है? Yes, what is the rank of this matrix? 3. अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का देखा जाए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है, नंबर ऑफ ए नॉन जीरो एलिमेंट इन फुल मैट्रिक्स, तो 3 है. पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो नॉन जीरो है, तीसरी पूरी की पूरी का जो लास्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, इसलिए इसका रैंक 3 है. फिर अगर मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए देखूं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कलर से लिख लेता हूं. तो अगर मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए देखूं, वो कितना है? आई हैव टू बी सी आउट दिस पार्ट. तो मुझे सिर्फ ये पार्ट देखना है ना? This is the matrix A. So rank of the matrix A is 2. And if you see out, the rank of the matrix A is not equal to with the rank of the matrix, augmented matrix A is to B. ये equal नहीं है. अगर ये equal नहीं है, it means that system is inconsistent. So तो अगर आप फर्दर सोल्व करना चाहें, इसको RREF बनाना चाहें तो बना लीजिए, अदरवाइज यहीं पे छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो वी कांट फाइंड अ सॉल्यूशन. तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हेंस नो सॉल्यूशन. तो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन इन दैट केस. क्लियर? एनी डाउट? एनी क्वेरी? No, sir.
ओके सर हाँ जी प्लीज ये दोबारा बताना सर। फिर देख लीजिए, हमने -35 को 0 क्यों नहीं कर सकते? जी बेटा सर लास्ट वाले रो को हम 0 नहीं बना सकते टोटल? लास्ट ये पहले मुझे बताओ, ये वाला एलिमेंट अगर मैं बात करूं ये 0 कैसे आएगा? अगर आप पहली रो से इसे कुछ ऐड ऑन करके 0 बना भी लेते हैं इस 8 से, अगर 8 को मैं 1 बना लूं, पर ये -4 है, ये 7 है और ये 1 है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे इस रो के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे, वो 0 नहीं रहेंगे। इट कैन नॉट बी 0 इन दैट केस, है ना? तो whatever the case is there, we have to be get in a echelon form। तो हमें echelon form से ही कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं echelon form से ही कोशिश कर रहा हूं तो इसका मतलब है, अगर मैं फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस -35 से जो आपके पास -35 आया है उसको 1 बनाते हुए ऊपर के एलिमेंट्स को मैं 0 बना सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इन दो एलिमेंट्स को 0 बना सकता हूँ, है ना? बाकी एलिमेंट्स में कुछ नहीं हो सकता है। वो 35 का या 1 का जो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है वो रहेगा ही रहेगा। Whatever the non-zero element will be remaining up here, that will be existing up। ठीक है, एक तरह से ये आपके पास एक तरह से रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म ही बन जाएगी जब आप इसे फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। देखिए, अगर आप इस 20 को 1 बनाते हैं, इसकी हेल्प से मैं ये 0 बना सकता हूँ बस। और नेक्स्ट नॉन जीरो रो में अगर मैं जाता हूँ तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज दिस वन, तो इसकी हेल्प से मैं ज्यादा से ज्यादा इन दो एलिमेंट्स को 0 बना सकता हूँ। तो अल्टीमेटली ये मेरे तीनों के तीनों एलिमेंट 0 हैं। तो अगर मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए देखता हूं तो वो मेरे पास 2 है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए है जो मैंने ग्रीन से डॉटेड लगाई है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो 3 है, और दोनों की जो रैंक है वो सेम नहीं है। अगर दोनों की रैंक सेम ना हो तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है पिछले लेक्चर के अंदर भी, आज भी हमने रिवाइज किया था कि अगर रैंक सेम नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो उस केस में जो सिस्टम होता है हमारा वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मींस वी कांट फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या एनी डाउट? हमने यहाँ पर 20 को यूनिट इसलिए नहीं बनाया था कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाकी तो कोई रीजन नहीं है ना। क्या प्लीज सर हमने यहाँ पर जो 20 एलिमेंट था उसको हमने 1 नहीं बनाया बना ताकि लीजिए, कोई चक्कर नहीं, अब कोई चक्कर नहीं है। बेसिकली पता क्या हुआ, यहाँ पे आगे फर्दर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट सा बन रहा था। अगर आप करना चाहें उसे आप 1 बना लीजिए, 20 से डिवाइड करवा लीजिए एंड देन मेक अप दीज टू एलिमेंट्स टू बी 0 फर्स्ट। अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को 0 फर्स्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे ये भी 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली आपकी ये जो लास्ट रो है वो 0 बन जाएगी। Now, if you are confused, then in that case you can make it unity first and then apply the operations. Okay? Ultimately, you will found that कि मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो 2 हो रहा है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 आ रहा है, जिस कारण से सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है? यस सर। Any other query if you have? No? Can I proceed to the next example? तो ये दो टाइप्स मैंने डिस्कशन कर ली, एक कंसिस्टेंट के साथ, एक इनकंसिस्टेंट जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में भी आ जाते हैं। ठीक है, say that the question is here, solve again I'm taking up for example of a into x is equal to b type. Say that system is 1 1 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1, and here I am taking up a rectangular matrix 3/4 type. So why I have a 4 variables x1 x2 x3 and x4. Okay, and here I have 4 2 0. So this is again of a type ax is equal to b. To find a solution first we have to make up an augmented matrix. We have to simplify the augmented matrix a is to b. So I just write in the terms of augmented matrix 1 1 1 1. सर राइट में एक टर्म मिसिंग होगी। हाँ जी बेटा, सर एक टर्म मिसिंग होगी सर, 3 से 4 होंगे ना।
फिर कहाँ कैसे मिसिंग हो गया? मल्टीप्लाई करा के देखो आप इसको। ये 3/4 है, ये 4/1 है, तो आपके पास मल्टीप्लाई करवाने पे कि मैट्रिक्स क्या बनेगी? 3/1 बनेगी, और ये 3/1 ही है। ठीक तो है? हाँ जी बेटा प्लीज। सर ये तो सर सिंपल ही हो गया कि 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट ही हो गया सीधा। इनकंसिस्टेंट कैसे हो गया? 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? देखना भी, अभी यू कैन चेक इट आउट, ठीक है सर। just check it out. So we have a 4 here, and here we have a 1 1 1 -1 2. देखिए 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल जब हम बात करते हैं तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट हो सकता है, बिकॉज हमने बात किया था रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू बी रैंक ऑफ ए इज टू बी बट नॉट इक्वल टू बी द नंबर ऑफ ए अननोन्स. In that case, the system is consistent but has infinite यूनिक नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा नहीं यस होगा ना, वो केस बनेगा यहाँ पे. यस सर, ठीक है सर। ठीक है, हो सकता है आपके पास 3 वेरिएबल्स हों, 4 क्वेश्चंस हों. इन दैट केस अगेन वी हैव टू बी चेक्ड आउट ऑल द अदर थिंग्स. एनी हाउ, चलो ये हमारे पास अब एक सिस्टम बन गया. ठीक है, अगेन अब अल्टीमेटली आपको पहले ही यहाँ पे 1 मिला हुआ है लीडिंग कोएफिशिएंट. ठीक है, तो यूजिंग अप दिस 1 वी हैव टू मेक अप दीस टू एलिमेंट्स टू बी 0. तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि इन दो एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं. We will apply up the row operations to get up these two. Okay, तो क्या करते हैं, R2 में R2 minus R1 कर लेते हैं, और R3 में R3 minus R1 कर लेते हैं. ठीक है, तो we get here is the 1 1 1 1. Here we have a 4. यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा. Here we get the 0. Here we get a 0. Here we get a -2, and here we get a 2 - 4 -2. Here we get R3 minus R1 कर रहे हैं तो -2 0 -2, and here we get a -4. क्लियर है ये? ठीक है स्टेप्स. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या बोला था, हमने रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म बना रहे हैं, और रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए. अब क्या हुआ, सेकंड रो में आपके पास 3 जीरोस हैं, थर्ड रो में पहले एक जीरो है, फिर नॉन जीरो एलिमेंट आ गया. इसका मतलब रो रिड्यूस इशेलन फॉर्म बनाने के लिए पहले तो रोज को आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा, देन फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा नेक्स्ट रो में. तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम करते हैं, पहला R2 को रिप्लेस करवा लेते हैं R3 के साथ. ठीक है, टू मेक इन द RREF फॉर्म. तो ये हो जाएगा 1 1 1 1. Here we have a 4 0 -2 0 -2. Here we have a -4, then 0 0 0 and -2. Here we have a -2. So अब नेक्स्ट रो में हम चेक करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट. तो वो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है हमारे पास ये है, पर ये यूनिटी नहीं है. उसको सबसे पहले तो यूनिटी बनाना पड़ेगा. तो R2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1/2 के साथ. So we have here is 1 1 1 1 4 0 1 0 1, and here we have a 2. ठीक है, then we have a 0 0 0 -2 and -2. अब क्या करेंगे, ये जो हमने यूनिटी बनाया है, इस यूनिटी एलिमेंट के साथ we have to be make above and below to be 0. उसके ऊपर और उसके नीचे 0 बनाएंगे अभी हम. तो means using up this element, whatever we have, we make this element to be 0. नीचे वाला तो पहले 0 है, तो क्या करेंगे, R1 में काम कर लेते हैं R1 minus the R2. ठीक है, तो we get here is the 1 0 1 0, and here we have a 4 0 1 0 1, and here we have a, नहीं यहाँ पे 4 -2 2 आएगा ना, सॉरी. तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ भी 2 है, और ये तो पहले 0 था नीचे. एनी डाउट? अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं. अब इस सेकंड रो में काम कंप्लीट हो गया. ठीक है,
अब थर्ड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, थर्ड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है ये, पर ये यूनिटी नहीं है, तो पहले यूनिटी बनाते हैं, R3 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं -1/2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 0, here 2 0 1 0 1, here we get 2 0 0 0 and 1, here we get a 1. अब using up this element we have to make above elements to be 0, ठीक है, using up this element तो हमने यूनिटी बनाया है, इसके साथ इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट 0 बनाने पड़ेंगे, है ना, तो वी कैन गो विद द वर्क। R2 को हम चेंज करते हैं R2 minus the R3, so we get here is 1 0 1 0, and here we get a 2, here we get a 0 1 0 and 0, here we get a 2 minus 1 is 1, 0 0 0 and 1 and 1, ठीक है, इसके आगे फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, आगे हमारे पास कोई रो नहीं है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ अ रो रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म, ठीक है, दिस इज रो रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए देखूं कितना है, मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है, 3, और ए इज टू बी का 3, वो भी 3, दोनों का जो रैंक है वो 3 है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4, x1 x2 x3 x4 थे ना, अननोन्स बोल लीजिए, वेरिएबल्स कह लीजिए, जिसको हमने निकालना है वो 4 है, तो इसका मतलब ये तो सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये दोनों सेम तो आ रहे हैं, तो इस कारण से सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया पहले तो, बट नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो सिस्टम हैज infinite many solutions. अब वो infinite many solutions निकालने हैं हमने, कैसे निकालेंगे अब, ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं कि how we can find infinite many solutions। तो ये जो हमारे पास augmented matrix A to B हमारे पास आई है, इसको हम लिखते हैं वापस AX into B की फॉर्म में, तो write augmented matrix in terms of a AX is equal to B, इस फॉर्म में दोबारा लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जो भी ए के एलिमेंट्स हैं लिख दीजिए 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1, and here the matrix A X is x1 x2 x3 x4, and here in the side B we have a 2 1 and 1, ठीक है, so now we have to solve this one, ठीक है, अगर मैं इसे अब सोल्व करता हूं तो we can say that this implies that x1 plus x3 कितना आ जाएगा 2, x2 is equal to भी कितना आ जाएगा 1, x4 is equal to भी कितना आ जाएगा 1, it means that ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है x1 plus x3 is equal to be 2, यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, say that here I consider the x3 is equal to be some alpha which belongs to be any real number, ठीक है, any real, in that case your x1 is equal to be, आपका जो x1 हो गया वो हो गया 2 minus alpha, you have a one free variable, so means the solution is infinite many solution is अब आपके पास सॉल्यूशन से x1 x2 x3 x4 थे, अब उसको हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या है, x1 क्या था हमारे पास, अब आ गया 2 माइनस अल्फा, x2 की वैल्यू 1 है, x3 को आपने सपोज कर लिया था अल्फा, और x4 की वैल्यू क्या है 1, तो डिपेंडेंट अपॉन अल्फा,
तो whatever you can choose alpha according to the solution is being changed up. ठीक है, so it has infinite many solutions. Whatever the alpha you can choose enough. अब देखिए कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. जैसे यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल है ना, फ्री वेरिएबल का मींस डिपेंडेंट वेरिएबल यू कैन आल्सो टॉक अबाउट कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कितने होंगे. तो नाउ यू कैन टॉक अबाउट, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो हैं, फ्री मींस जो हम फ्रीली चूज कर सकते हैं, इन दैट सेंस that will be equal to be the total number of variables minus the rank of the matrix. जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 थे और रैंक कितना था, 3 था, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने आए, 1 आया. जैसे x3 लिया आपने या x1 लिया, जो भी लेंगे आप, तो अकॉर्डिंगली वी कैन टॉक अबाउट दिस वन. तो बट द सॉल्यूशन इज दिस वन. यहाँ तक आपका आंसर खत्म है. सर ये लास्ट में आपने कैसे लिखा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स मींस किसी के ऊपर डिपेंडेंसी. जैसे यहाँ पे अगर आप इक्वेशन देख रहे हैं तो कई बार ऐसी भी हो सकता है कि आपके पास जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फर्दर आप जब सोल्व करेंगे, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन आ गई x1 plus x3 is equal to be से 2, दूसरी आ जाएगी से x2 plus x4 is equal to be 4. अब यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो ना तो सोल्व नहीं हो पाएगा. x1 जो है x3 के ऊपर डिपेंडेंट आ जाएगा, x2 जो है वो x4 के ऊपर डिपेंडेंट आ जाएगा, है ना. तो इन दैट केस आई हैव जस्ट सेड दैट कि कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे सिस्टम के अंदर, तो वो हमें पता लग सकता है यहाँ से. दैट विल गिव दिस फार्मूला. वो इस फार्मूले से हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं. वैसे नहीं भी पता करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो आपको ऑटोमेटिकली जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगी उसमें से यू कैन चूज देम एज अल्फा एंड बीटा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द आंसर. ठीक है. हाँ जी बेटा प्लीज. सर फ्री मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट. हाँ, डिपेंडेंट कह लीजिए या फ्री का मतलब है जिसको हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी चूज कर सकते हैं. एनीथिंग कैन बी चूजन. जैसे मैंने यहाँ पे x3 को अल्फा ले लिया ना, कांस्टेंट ले लिया, और दूसरा इसके ऊपर डिपेंडेंट आ गया. वेरिएबल्स हम इंडिपेंडेंट वाले को मानेंगे ना. हाँ ठीक है. So I think it's enough for today. In the next lecture, we will be exploring up some more numerical problems for the system of linear equations to get the further solutions, and then we will start with the linear spaces. Any query? Any other doubt if you have? सर इसमें हम x1 को सर अल्फा मान के x3 निकाल सकते हैं ना? हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं. अगर देखिए, अगर आप x1 को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, इन दैट केस x3 is equal to be 2 minus अल्फा हो जाएगा. तो आपका जो सोल्यूशन ऐसे बन जाएगा अल्फा, 1, 2 minus अल्फा, 1. नो प्रॉब्लम, ये भी सोल्यूशन है. ठीक है. So why हमने इसको बोला, so why हमने बोला ना कि it has infinite many solutions. हाँ जी बेटा प्लीज. सर हमने x1 plus x3 equals to 2 इक्वेशन लिखी कैसे? ये तो मल्टीप्लाई करवा के लिखना है बेटा. आपके पास अगर आप इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स A को इस मल्टीप्लाई करवाते हैं, आप रो बाय कॉलम ही करवाओगे ना. तो x1 मल्टीप्लाई x1 हुआ, x2 मल्टीप्लाई 0 हुआ, x3 मल्टीप्लाई 1 हुआ, x4 मल्टीप्लाई 0 हुआ, तो यही आएगा पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, तीसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी. ओके सर. ठीक है, क्योंकि ये आपके पास 3/4 है, ये आपके पास 4/1 है. मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/1 इक्वेशंस परफॉर्म हो रही है आपके पास. नहीं? यस सर. Yeah. So thank you. Any other query? Quick, fast. We have few minutes left with us. Any other query if you have? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा प्लीज. सर अगर सर A130 हो जाता, क्या 0 हो जाता? मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ही हाँ, RREF बनाने के बाद ये वाला. सर वो 0 हो जाता तो फिर हम x3 पे कमेंट ना कर पाते ना. हाँ, फिर नहीं कर ये पाते. सर ये वाला. या फिर नहीं कर तो तब भी फिर इनफाइनाइटली मैं नहीं रह रहा था. देखिए क्योंकि x3 कुछ भी चूज कर लो आंसर आएगा ही. वो देखिए जब ये बनने का केस ऐसा ही अकॉर्डिंगली, वो तो डिपेंड करेगा व्हाटएवर द केसेस वी हैव. ठीक है. नहीं सर, मतलब कंडीशन तो हमारी तब भी ये सेटिस्फाई हो जाती आएगी नहीं कि ना. रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B
नहीं वो और देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर, जनरली वो सिचुएशन बनेगी नहीं अगर आपके पास सोल्यूशन निकल रहा होगा इनफाइनाइट वाला होगा या यूनिक होगा, इसके अलावा तो वी कांट हैव एनी सोल्यूशन टाइप आउट देयर। यस सर ठीक है ना, तो सिचुएशन ही ऐसी बनेगी। ओके सर। सो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। So, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.